question number 76, Dr. K.V.P. Ramachandra Rao. Dr. K.V.P. Ramachandra Rao. Sir. Thank you. On what? Question. Dr. K.V.P. Ramachandra Rao. Respected Chairman, sir. She will not get an opportunity afterwards. This will be the line for anybody. Chal, please. Respected Chairman, sir. This information I got from the Times of India, July 2nd, 2018. Naxalites recruiting kids in Jharkhand, Chhattisgarh, says UN report. Sir, my question was basing on this. In this background, I would like to know from the Minister from which states the government have inputs that such activities are being in existence. Right. As per the inputs and the informations which government has, the left-wing extremism states, mainly Chhattisgarh, Jharkhand, Bihar, and some of the neighboring states, there are reports that some of the groups, they take away children or they influence the children and they use them in their nefarious design to destabilize the state. So we have reports that these Naxalites, they use the children in their all illegal activities. Second supplementary, Doctor. Sir, though police and public order are state subjects, whether the government of India is planning any special individual state-wise strategy in this regard, or a uniform strategy for the entire country to tackle the issue as it appears a prevailing problem for several states. Of the sensitivity of the children involved in this kind of illegal activities, the government has taken various steps, especially opening up of schools, Kendra Vidyalayas, Navodaya Vidyalayas, in those districts which are heavily infested by the national activities, as well as there are skill development activities for the children so that they can be mainstreamed through various activities initiated by the government. Sri Motilal Vora. I would like to know from the Minister, the United Nations has given a report in which they have indicated number of states involved in the trapping the children. I would like to know from the Minister what action they have taken and which are the states also. Secondly, are they getting the report from the state government, the action taken by them? Right. Minister. Sir, it is correct that the United Nations on 27 June 2018 had made a reference to India, though that reference was not a proper report, but it was situation not on the agenda of the Security Council or other situation. So it was a reference which was made against India. So our position is there is no armed conflict in India. There are some illegal outfits who are carrying out activities against India involving children. But we do not accept that there is an armed conflict within India. So we objected to this particular reference by the United Nations that there is armed conflict in India, as in the case of some of the countries where civil unrest is going on. At the same time, as per the inquiry sought by our honorable member, besides Naxalites, the left-wing extremism, Lashkar-e-Taiba, Jaish-e-Mohammed and Hizbul Mujahideen, we have the documents and information which UN also mentioned. These two terrorist organizations also have used children. Sri Amar Singh. अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ, क्या ये सही है कि जैसे मोहम्मद और कश्मीर के आतंकवादी जब हमला करते हैं तो बच्चों को पकड़ के ले जाते हैं और उन बच्चों को मानव बम के रूप में अपने विभिन्न आतंकवाद की गतिविधियों में शामिल करते हैं?
यदि यह सत्य है और इस तरह की गंभीर घटनाएं हो रही हैं, बच्चों को मानव बम बना करके उनका दुरुपयोग हो रहा है, तो इसके बारे में सरकार को जानकारी है, और अगर जानकारी है तो उन बच्चों की सुरक्षा के लिए सरकार क्या कर रही है? जैसे मैंने अध्यक्ष महोदय मैंने पहले जिक्र किया, जो हिजबुल मुजाहिदीन और जैसे मोहम्मद के वहाँ में घटना आया कि बच्चों को उन्होंने इस्तेमाल किया है, सरकार का तरफ से विभिन्न प्रकार का वहाँ में योजना चल रहे हैं जिससे बच्चों को, यूथ को, वहाँ के युवाओं को लाभ मिले और इस तरह का देश विरोधी ताकतों के साथ उनका काम ना हो। बाकी राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिल करके और भी अनेक कदम उठाते हैं, लेकिन ऐसा कोई मानव बम बना करके हमारा खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है, ऐसा अभी कोई रिपोर्ट नहीं है। थैंक यू। श्रीमती ककाश प्रवीण, कहकाश प्रवीण, कहकाश प्रवीण, आई एम सॉरी, प्लीज। मानव बम के बारे में सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहती हूँ। माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया कि इन्होंने बहुत सारे कौशल विकास का काम किया है जिससे बच्चों को लाभ मिला है, मैं ये जानना चाहती हूँ कि बेरोजगारी, गरीबी, दुर्घटना या बदले की भावना के कारण जो बच्चे गलत गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं, उनसे बचाने के लिए राष्ट्रव्यापी नीति बनाने की इनकी क्या योजना है? और ये भी है कि कौशल विकास का लाभ कितने बच्चों को इन्होंने दिया और राज्यवार ब्यौरा क्या है? एक क्वेश्चन अम्मा। सर, मैंने पहले जैसे बताया कि बहुत सारे कौशल विकास योजना के तहत बच्चों को लाभ पहुंचाने के लिए बहुत सारा कदम उठाया गया है और अलग अलग जितने राज्य हैं जो ये जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से प्रभावित है, उसके अलावा वहाँ के बच्चों को लेकर के जो जैसे कि उसको टूर कराना, उसको सेंसिटाइज कराना और अर्बन लाइफ के साथ, बाकी विकास के साथ वहाँ पे कार्य में कैसे उनको जानकारी प्राप्त करना है, इस तरह का काफ़ी कदम भी उठाए गए हैं। लेकिन मुख्य रूप से उनके गांव में, उनके जगह में स्कूल हो, वहाँ कौशल विकास का केंद्र हो, ये सबसे मुख्य रूप से जो भारत सरकार ने कदम उठाया है वो लाभ मिल रहा है। और अभी जो आप गत समय में देखेंगे तो बहुत सा जो घटनाएं इस तरह का कम देखने को मिल रहा है और मेन स्ट्रीमिंग ज़्यादा हो रहा है और नक्सल प्रभावी इलाका में इसका बहुत अच्छा असर भी हो रहा है। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन श्री आनंद शर्मा जी। क्वेश्चन 77 प्लीज। सर, उत्तर सदन की पटल पर रखा गया है। सप्लीमेंट्री प्लीज। Sir, the Minister in his reply has confirmed that the government has approved a policy which would involve diversion of food grains for the production of biofuels, biodiesel and biogasoline. Sir, the diversion of food for fuel has already sparked a global debate as it risks both food inflation and adequate availability of food grain for food security. Though biofuels have been encouraged in India, in Brazil has reached up to 25%, sir, but only from sugarcane, molasses or sugarcane waste. So, in India, for the blending of diesel or petrol, we have depended on molasses, jatropha and corn. Now this new policy to divert grain has attracted global attention. And sir, I would like to quote here, it's very important. No, question the father of the Green Revolution has said, Dr. Swaminathan, he has said that as a policy, diversion of food crop for use as biofuels is not desirable considering the extensive malnutrition and undernutrition prevailing in the country. Therefore, my question is, what has prompted the government to consider diverting food grains? Because the minister's reply says excess production or surplus production years as indicated by the Ministry of Agriculture. If there is surplus production, should it be diverted for that, or should you focus more on other available sources to produce biodiesel and biogasoline? चेयरमैन सर, माननीय सदस्य की चिंता अमूलक है, इसीलिए कि नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी जिसकी कोट हमने किया है, जिसके मसौदा पिछले महीनों में हम लोगों ने देश के सामने रखा है, मूलतः आज देश की शुगर केन इंडस्ट्री स्ट्रेस में, जितना हमारी देश में शुगर केन उत्पादित होती है, हमारी देश की किसान शुगर केन उत्पादित करता है, उस हिसाब से चीनी आवश्यक नहीं है।
चीनी जब ज़्यादा उत्पादन हो जाती है तो शुगर केन और शुगर इसकी जो इम्बैलेंस डेवलप होती है, किसानों के ऊपर उसकी काफ़ी सारा बोझ आ जाती है। इसी को मूलतः ध्यान में रखते हुए और हमारे देश की इंपोर्ट बिल, क्रूड ऑयल की इंपोर्ट बिल लाखों करोड़ों रुपया में है। इसको एक बैलेंस बनाने के लिए हमारी सरकार की स्पष्ट नीति है किसानों की आय को दुगनी करना, शुगर केन इंडस्ट्री को एक अल्टरनेटिव, शुगर से अल्टरनेटिव रूट देना, यह मूल बायोफ्यूल पॉलिसी की स्ट्रैटेजी रही। इसीलिए अब तक जिस माननीय सदस्य ने जो कहा, मोलासेस से हम शुगर केन की मोलासेस से हम एथेनॉल बनाते थे, उसमें हमने 2 और विषय जोड़ा है नया बायोफ्यूल पॉलिसी में। बी हेवी मोलासेस से एथेनॉल निकालना, सीधा सीधा शुगर की बदले शुगर केन जूस से ही आप उसको एथेनॉल बनाना। इसके एडिशन 2 और कमोडिटी को हमने अनुमति दिया है कंडीशनल। एक ब्रोकन राइस, जो राइस देश भर में आज हमारे देश में सारे राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की एक मांग आती थी कि उन राज्यों में जो ब्रोकन राइस है, जो सड़ जाता था, उन राइस को बेकार हो जाती थी, उसको अगर हम एथेनॉल बना के उसको वैल्यू एडिशन करते, किसान की जेब में 2 पैसा जाएगा। एक दूसरी, सारे ट्राइबल इलाका में कौन सरप्लस प्रोडक्शन है उसको भी, जैसे आपने भी कौन को माना, कौन को अगर हम एक कंडीशनलिटी के साथ, अगर एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री कहेगा कि सरप्लस प्रोडक्शन हुई है, फूड मिनिस्ट्री, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री, चारों मिनिस्ट्री मिलकर तय करेंगे, तब उसी साल उसको हम अनुमति देंगे। कोई एक ब्लैंकेट अनुमति नहीं है। आप ध्यान रखेंगे। सेकंड सप्लीमेंट्री। दूसरा प्रश्न ये है, पूरक प्रश्न, कि एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल और डीजल के लिए, जैसा मंत्री महोदय ने अभी कहा है सदन के अंदर, कि शुगर केन जो भारत में भारी मात्रा में, ब्राज़ील और भारत 2 देश हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, उसके अलावा जो आप मोलेसिस से बनाते हैं, जट्रोफा से बनाते हैं, कॉर्न से बनाते हैं, हमारे देश में जो फल पैदा होते हैं, सब्ज़ी पैदा होती है, वो लगभग 20% ज़ाया हो जाती है खेतों में ही। उसका कोई लाभ किसान को नहीं मिलता। अगर आपको डाइवर्ट करना है तो फल और सब्ज़ी जो इस तरह से बर्बाद होते हैं, आप प्राथमिकता उसको देते हैं। मंत्री महोदय ने अपने जवाब में दिया है C&D, आप कृपा करके जवाब उत्तर को देखें, उसमें सरप्लस फूड ग्रेन प्रोडक्शन को भी डाइवर्ट करने की बात है, जैसा मंत्री महोदय ने सदन को बताया। किसान को लाभ देने के लिए, और आपके जो फॉरेन एक्सचेंज बाहर जाता है डीजल, पेट्रोल, क्रूड को खरीदने में, आप अगर किसान ने सरप्लस प्रोडक्शन किया है, उसको आप एक्सपोर्ट की अनुमति दें, जिससे फॉरेन एक्सचेंज का पैसा आए, उससे किसान को भी लाभ मिले, देश को भी लाभ मिले। उसका इसकी एथेनॉल की प्रोडक्शन के लिए डाइवर्ट करना शायद ये न्यायोचित ना हो। सरकार को इस पे पुनर्विचार करना चाहिए। मिनिस्टर। चेयरमैन साहब, फिर मैं विनम्रता के साथ माननीय सदस्य को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ, अभी भी फूड ग्रेन, अभी भी लीकर के लिए अनुमति है। हम अपना इंपोर्ट बिल घटाने के लिए, अगर उसको पेट्रोल में ब्लेंड करने के लिए कंडीशनल सरप्लस अवेलेबिलिटी के साथ राज्यों की अनुरोध से अगर हम करेंगे, इसकी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बाकी रहा पौधे की, फल की, सड़े हुए फल की, ये नया बायोफ्यूल पॉलिसी में सारा विषय को हमने लिया है। बायो CNG बनाएंगे, स्टार्टअप्स को इनकरेज करेंगे, देश में एक ऑल्टरनेटिव लाखों, एक मेरे जिम्मेवारी के साथ मैं चेयरमैन साहब कहना चाहता हूं, देश में आज शुगर इंडस्ट्री की वैल्यूएशन 1 लाख करोड़ की नजदीक है। हम इस नए मुहिम से, प्रधानमंत्री जी की जो कमिटमेंट है, देश के किसानों की आय को दोगुना करना सिर्फ MSP से नहीं होती है, वैल्यू एडिशन से होती है। यह नया बायोफ्यूल पॉलिसी उस दिशा में आपकी सारे सुझाव के साथ एक बड़ी कदम है। आपकी हम आश्वस्त करते हैं, देश में फूड ग्रेन की कोई स्कैर्सिटी होने नहीं देंगे। थैंक यू। श्री रंजीव बिस्वाल। Chairman sir, I would like to know through you from the Honorable Minister that 1 year back he had promised a fuel project in Odisha. I would like to know the status of the project and when it is going to be completed. Minister. चेयरमैन सर, उड़ीसा की जिस बरगढ़ जिले के बारे में अभी एक हमारे सम्मान्य सदस्य इंश्योरेंस के बारे में उठा रहे थे, उसी बरगढ़ जिले में राज्य सरकार वहाँ की लैंड देने में एक अहेतुक देरी की। उनको मालूम होगा क्यों देरी किया, वो भी सदस्य अगर मदद करते तो अच्छा होता। अभी
No, 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 this is not the way. This is not the way. अभी अभी उन्होंने बरगढ़ के बारे में पूछा, जो लोग संबंध नहीं रखते वो क्यों चिल्लाते हैं? आप राज्य सरकार आप अपना लैंड अभी दिया है, आप प्लीज लैंड अभी दिया है, प्लीज खुद जल्दी ही। ठीक है भाई ठीक है। चेयरमैन साहब, कारखाना आसमान पे नहीं लगेगी, कहीं जमीन चाहिए। जमीन देने के अधिकार सदस्य को इतनी सामान्य ज्ञान होनी चाहिए, राज्य सरकार के पास है। राज्य सरकार जमीन अभी अभी दिया है, हम उस कारखाना को लगाने वाले हैं। राइट, ओके। सेकंड सप्लीमेंट्री, श्री आरसीपी। मैं माननीय सदस्य को चिट्ठी के साथ चिट्ठी दे दूंगा। ठीक है। श्री आरसीपी सिंह, जेडीयू। अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदय जवाब में कह रहे थे, इसमें इन्होंने मेज की भी चर्चा की, लेकिन जो जवाब में यहाँ पर दिया हुआ है फूड ग्रेन्स लाइक वीट एंड ब्रोकन राइस, तो उसमें ये सुधार हो जाना चाहिए, क्योंकि मक्का भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरा सवाल ये है कि ये जो एजेंसीज जिससे प्रोक्योरमेंट करेगी, जो भी बायोफ्यूल्स बनाया जाएगा, तो प्रोक्योरमेंट कहाँ से करेगी? FCI से करेगी, स्टेट की एजेंसी से करेगी, या डायरेक्ट किसान से करेगी? ये भी स्पष्ट होना चाहिए। राइट। मंत्री जी। सर, जिस मूल चिंता को माननीय आनंद शर्मा जी ने उठाई थी, माननीय सदस्य ने, कि भाई कंडीशनल होनी चाहिए, इसीलिए मेज आज भी फूड, ये लाइव स्टॉक की फूड ग्रेन फॉर्डर है, इसीलिए उसको ब्लैंकेट अनुमति ना देते हुए कंडीशनल अनुमति मेज को रखा गया है। बाकी रहा प्रोक्योरमेंट की, मूलतः जब पॉलिसी अभी अभी आई है, राज्यों से चर्चा करेंगे, मार्केट मैकेनिज्म को भी लिया जा सकता है, जो किसानों को सीधा लाभ पहुंचा पाए, उस प्रकार के मैकेनिज्म को उसमें हम अडॉप्ट करेंगे। प्रभाकर कोरे। Thank you, sir. Honorable Minister has replied, almost with ethanol, we are saving more than 1,749 foreign exchange crores. My straight question, the ethanol, the percentage of ethanol mixing in petrol and diesel is very less. Whether is government planning to increase the ethanol percentage as well as price also? And because, as is replied, sir, there is a direct, they are providing sugarcane juice to direct ethanol. And if that order is coming out, is going to be help to the farmers where the sugar is plenty of sugar surplus in this country. The sugar price has come down tremendously. So the ethanol, at least the support to the farmers, right, whether they have planned this. Minister. चेयरमैन सर, सदस्य की सही प्रश्न है कि क्या उसकी प्राइसिंग के बारे में ये सारा विषय पे सोच रखा गया है। पहली बार सरकार ने FRP लिंक्ड प्राइस मैकेनिज्म लाया है। अब तक टेंडर बेस होती थी, लेकिन एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस रूट टाइप की प्राइस हम लोगों ने लाया है। और अभी अभी जो 3 दिन पहले GST काउंसिल की मीटिंग हुई, GST काउंसिल ने भी सारे काउंसिल को हम लोगों ने अनुरोध किया था, ये ग्रीन फ्यूल है, इसके ऊपर लो टैक्स रखा जाए। तो GST काउंसिल ने भी 5% उस पर स्लाइड घटाया है, 18% से उसको 5% लाया है। और अभी लगभग FRP रूट पे एक अच्छी प्राइस मैकेनिज्म निकल के आया है। शुगर, मूलतः शुगर उसमें से पहुंच पाएगा। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन 78, श्री हरनाथ सिंह यादव। माननीय प्रश्न संख्या 78। मिनिस्टर। उत्तर सदन के पटल पर रखा गया। फर्स्ट सप्लीमेंट्री। माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि भारत सरकार द्वारा संचालित विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत किशोर कन्याओं और कितनी महिलाओं, विशेषकर किशोरियों को प्रशिक्षित किया गया है। उनमें से कितने लोग अब तक लाभान्वित हुए हैं, यानी कि उन्हें नौकरी मिली है, ताकि वे लोग प्रताड़ना व शोषण से बच सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। मिनिस्टर। सर, भारत सरकार पूरी तरीके से सक्रिय है कि महिलाओं की और ख़ास तौर से किशोर कन्याओं को नौकरी के अवसर दिए जाएं। और इस समय का जो आंकड़ा ये बताता है कि महिलाओं की सहभागिता 27% के आसपास है। और ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं कि जो महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
और ये हम इसलिए कह रहे हैं कि अब ऐसे बहुत से फैसले हम लोगों ने लिए हैं जो इस दिशा में सार्थक कदम उठाकर और कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें बहुत सी हमने ऐसे कदम उठाए हैं जो अभी तक पहले कभी नहीं थे। हमने मातृत्व अवकाश 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह तक कर दिया और हमने ये भी कोशिश की कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के अंतर्गत वर्क फ्रॉम होम यानी घर पर काम करने की महिलाओं को सुविधा दी जाएगी, जो निश्चित रूप से महिलाओं को उनके रोजगार देने में सहायक सिद्ध होगा। और ये भी कोशिश की है कि जहाँ पर 50 से अधिक कर्मी है वहाँ पर क्रेचेज आज की सुविधा दी जाए। और इसके साथ एक और बात, महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वरोजगार की दिशा में जो मुद्रा लोन दिए गए हैं उसमें 75% खाते महिला उद्यमियों के लिए हैं और वो अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं। और इस स्कीम के तहत महिलाओं को ब्याज दर में भी 0.25% का रिबेट दिया गया है। और महिलाओं की रोजगार परकता बढ़ाने के लिए डिटेल है तो सदन के सभापति द्वारा दिया आपने वीमेन ITI की भी स्थापना की है। ओके मंत्री जी, सेकंड सप्लीमेंट्री। मंत्री जी, आपने विस्तार से जवाब दिया है, इसके अलावा और कुछ है तो प्रश्न दो पूरा। माननीय महिलाओं एवं किशोरियों के कौशल को बढ़ाने के लिए उनको नौकरी मिल सके, इसके लिए अब तक कितना बजट स्वीकृत किया गया है एवं उसमें से कितना खर्च हुआ है, इसका ब्यौरा देने का कष्ट। वैसे तो ये मंत्रालय हमारे मंत्रालय का संबंध नहीं है, 2-3 अन्य मंत्रालय इसको देखते हैं। पर जैसा मैं भी कह रहा था, महिलाओं की रोजगार परकता बढ़ाने के लिए सरकार ने वुमेन ITI की स्थापना की है और इस वास्तव में टेक्सटाइल मंत्रालय और वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मंत्रालय ये इस विषय में ज़्यादा सहयोग जानकारी दे सकते हैं। और जैसा मैं कह रहा था कि महिलाओं को रात में काम करने के लिए, शिफ्ट में रात की ड्यूटी में काम करने के लिए सुरक्षा प्रबंध की भी व्यवस्था हम लोगों के द्वारा की गई है और ये वास्तव में ऐसे कदम है, इसका एक सही लाभ मिल रहा है। श्रीमती संपत्ति उके। अध्यक्ष महोदय जी, आपके माध्यम से जानना चाह रही थी माननीय मंत्री जी से कि अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में महिलाओं को और बालिकाओं को नौकरी के लिए क्या कदम उठाए हैं और उसके साथ साथ आगे क्या कदम उठाने जा रहे हैं। धन्यवाद। मंत्री जी। सर, ये जैसा मैं बता रहा था अभी, महिला एंड बाल कल्याण और अनुसूचित जाति जनजाति मंत्रालय ये इसमें ज़्यादा सक्रिय भूमिका अदा करते हैं और जानकारी दे सकते हैं। हम जो इसमें सहयोग कर सकते हैं नौकरी के लिए हर समय तैयार रहते हैं और कोई भी समस्या आती है तो हम इसको बताने का काम करेंगे, सुधारने का काम करेंगे। पर इन दोनों मंत्रालयों से मैं कहकर कोई इस संदर्भ में स्पेसिफिक बात होगी उसकी जानकारी देंगे। रामनाथ ठाकुर। आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहते हैं कि बिहार में किशोरियों हेतु योजना का उद्देश्य 11-18 वर्ष की आयु समूह की लड़कियों को सशक्त बनाना तथा पोषण, जीवन कौशल, गृह कौशल और व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार लाना। बिहार में कितने लोगों को यह बनाया है, यह मंत्री जी से जानना चाहते हैं। आप स्पेसिफिक प्रदेश के बारे में पूछ रहे हैं। ये इसकी जानकारी हम प्राप्त करेंगे पर सीधा सवाल हमारे मंत्रालय से संबंधित नहीं है। मैं संबंधित मंत्रालय को सूचना देकर आपको जानकारी दिलवाऊंगा। श्रीमती विप्लव ठाकुर। इन्होंने कहा कि मंत्रालय से कहीं नहीं, लेकिन जो इनके मंत्रालय से मैं उसी के बारे में पूछना चाह रही हूँ। ये है कि यदि सरकार देश महिलाओं को नौकरी के अवसर बढ़ाने हेतु उठाए विशेष कदमों का ब्यौरा दिया, मैं जानना चाहती हूँ कि क्या महिलाओं के लिए जैसे बाकी जगह पर रिजर्वेशन रखी गई है, क्या नौकरियों में भी महिलाओं के लिए रिजर्वेशन रखने का कोई ऐसा प्रावधान या कोई ऐसी बात सोची जा रही है? क्योंकि उसमें पार्लियामेंट में या विधानसभा में तो दिया नहीं जा रहा। क्या नौकरियों के लिए महिलाओं के रिजर्वेशन, क्योंकि कंपटीशन में कई बार नहीं वो आ पाते, क्या इसके बारे में सोचा जा रहा है? मैं कह रहा था महिलाओं की सहभागिता इस समय 27% के आसपास है। रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। कैसे आगे बढ़ाया जाए इसकी चिंता हम कर रहे हैं, पर अगर आप कोई सुझाव देंगे तो वास्तव में उस पर अमल करवाएं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन श्री विश्वम्बर प्रसाद निषाद। क्वेश्चन नंबर 79। महोदय, उत्तर पटल पर रखा गया। क्वेश्चन बिना मैंने पूछा नहीं, फिर भी मुझे मेरे सामने इतना सप्लीमेंट्री करे। माननीय सभापति महोदय,
मेरा बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आज देश में जेलों के अंदर से तमाम तरह से तस्करी, तमाम तरह से वहाँ से अपहरण और तमाम तरह की घटनाएं घटित की जा रही हैं। हम मानते हैं कि एशिया की तिहाड़ सबसे बड़ी सुरक्षित जेल मानी गई है। महोदय, मैं याद दिलाना चाहूँगा 25 जुलाई 2001 को समाजवादी पार्टी की सांसद फूलन देवी थी, उनको मारने वाले शेर सिंह राणा वहाँ से उस जेल से, सुरक्षित जेल से निकल गए। आज उनकी श्रद्धांजलि सभा है, सब जगह मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मोबाइल, व्हाट्सएप, असलहे कैसे पहुँच रहे हैं? तो मैं माननीय मंत्री जानना चाहता हूँ कि सीसीटीवी कैमरे और जयमल लगाने पे क्या सभी आपकी 134 जेलें सेंट्रल जेलें हैं और कुल मिलाकर 1401 जेलें हैं, राइट। क्या सभी जगह सीसीटीवी कैमरा और जयमल लगाने विचार करेंगे? राइट। मंत्री जी। सभापति जी, ये जो जेलों में सीसीटीवी कैमरे और जेलों में और भी सुरक्षा बढ़ाने के लिए गृह मंत्रालय के द्वारा बार बार एडवाइजरी निकाली जाती है और जो भी सूचनाएं मिलती है उसके अनुसार अभी हाल ही में हमने मार्च 2018 में भी कि महिलाओं को लेकर कुछ सूचना मिली थी कमेटी के द्वारा सांसदों की, तो उसकी भी हमें एडवाइजरी निकाली है। और कोशिश ये रहती कि सारी जेलों को जो राज्य सरकार देखती है, राज्य सरकारों को बार बार सूचना दी जाती है और उस अनुसार सदस्य महोदय जी ने जो पूछा है उस तरीके से ही हम सारे जेलों की व्यवस्था देखने के लिए राइट। सेकंड सप्लीमेंट्री व्यस्त है। सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी के पास सेंट्रल जेलें हैं, वहाँ भी पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। व्हाट्सएप से इंटरनेशनल कालें की जा रही हैं, इंटरनेशनल जो है हवाला हो रहा है। एक तरफ काला धन लाने की बात करते हैं, विदेशों में पैसा जमा हो रहा है, यहाँ अपहरण हो रहे हैं, तमाम घटनाएं हो रही हैं। मानो अभी ताजा उदाहरण है मुन्ना बजरंगी हत्याकांड बागपत जेल में हुआ। वो झांसी से बागपत लाया गया। बागपत में कोई आपका सवाल क्या है? उनकी पत्नी आप एक जेल से दूसरी जेल में जा रहे हैं। हो सकती है मानो, तो क्या मानव अधिकार का उल्लंघन हो रहा है? क्या मुन्ना बजरंगी की जो न्यायिक वृक्ष में हत्या हुई है, तो क्या मानव अधिकार का उल्लंघन हुआ? क्या इसकी सीबीआई जांच कराएंगे माननीय मंत्री? राइट, ऐसा पूछिए ना बस। महोदय, जो दिल्ली की तिहाड़ जेल के बारे में आपने कहा है, वहाँ पर भी इस सारी बातों की व्यवस्था होती है। वहाँ पर भी सीसीटीवी कैमरे और बातों की व्यवस्था की गई है। वहाँ पर भी कोई अपराध ना हो इसका दिल्ली जेल में व्यवस्था की गई है। अभी आपने जो उत्तर प्रदेश में जो घटना हुई है बागपत के जेल में, ये राज्य सरकार से हमने उसका ब्यौरा मांगा था, उन्होंने सूचना भेजी है कि झांसी में जो बंदी थे मुन्ना बजरंगी, इनको बागपत जेल में लाया गया था और किसी पेशी पे भी उनको उपस्थित होना था और वहाँ पर एक घटना हुई है। उसके बाद में इस घटना के बाद में राज्य सरकार ने बताया कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 176(1) में एक न्यायिक जांच कराई जा रही है और इसमें जो भी अपराधी होंगे उन पर राज्य सरकार कार्रवाई करने वाली है। श्री मजीद मेमन provided to the House some statistics in the reply. In that context, I may ask him that you have stated that there are 50,000 prisoners in various prisons of the country are in excess of the capacity. Now, in this context, I may ask the Honourable Minister, is there any proposal to have expansion of prisons or have additional prisons? And another figure that you have given is 37 deaths have occurred, murders in prison during 2014. One question, Majid ji. Sir, only this is connected prison. In 3 years, 2014, 15, 16, there have been 37 murders according to your record. We want to know whether those 37 murders people have been prosecuted and convicted. What is the stage? Minister. महोदय, जो भी जेलों में भी जो हत्याएं होती है, अपराध होते हैं, उस पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाती है, उन पर भी और भी मुकदमे चलाए जाते हैं। लेकिन सदस्य महोदय ने जब पूछा है, कहा ये बात सही है कि जेलों में अपनी क्षमता से अधिक वहाँ पर कैदी रखे जा रहे हैं और कई ऐसे राज्यों का हमने ब्यौरा दिया हुआ भी है। लेकिन ये सारी बातों को देखते हुए केंद्र सरकार ने 2010 तक तो काफ़ी आर्थिक सहायता की है, मदद की है, कई जेलें बनाई हैं सरकार के केंद्र सरकार की मदद से। जैसे कि अभी दिल्ली में भी ये प्रॉब्लम था तो दिल्ली में एक नया जेल बनाया गया है, कैपेसिटी कम की गई है वहाँ पे अभी पहले की तुलना में। और इस तरीके से राज्य सरकार भी नई जेल बनाती है और अपनी ताकत से
जेलों में जो कैदियों की क्षमता है वो बढ़ाने का प्रयास राज्य सरकार की जिम्मेदारी हो करते आई है। ठीक, श्री अशोक वाजपेयी। आपके माध्यम से मैं माननीय गृह मंत्री से जानना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों की संख्या जो जेलों की क्षमता है उससे कहीं ज़्यादा अपराधी जेलों के अंतर्गत बंद हैं और मान्यवर एक बड़ा कारण है जिसके कारण उनका रख रखाव और सुरक्षा की व्यवस्था नहीं। मेरा एक निवेदन है माननीय मंत्री जी से कि जो इसमें हार्डन क्रिमिनल है क्या उनको जेलों के अंदर अलग रखने की व्यवस्था संभव की जा सकती है कि जिससे कि ये अपराधों पर अंकुश लगाया जा सके। हार्डन क्रिमिनल्स। अध्यक्ष महोदय इसमें ये व्यवस्था अपने अपने राज्यों में सरकारें रखती हैं, की भी जाती है और इस तरीके से जेल की निगरानी और जेल में ऐसे अपराध ना हो ये जिम्मेदारी वहाँ के अधिकारी और सरकार को देखना होता है और ऐसी कोई शिकायतें भी आती हैं तो ये राज्य सरकार भी उसके निपटना पड़ता है। ये कुछ लोगों का शिकायत है तिहार विहार हो गए आजकल, वहाँ जाके लोग अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। कुछ लोगों ने उसके बारे में आंदोलन व्यक्त किया, थोड़ा उसके ऊपर ध्यान दीजिए। श्री राम गोपाल यादव जी। श्रीमान बहुत बहुत धन्यवाद आपको। माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है उसमें यह है कि मॉडल प्रिजन मैनुअल 2016 हैज़ आल्सो बीन सर्कुलेटेड टू ऑल स्टेट्स एंड यूटीज़ which provides that under trials and detainees are to be lodged in separate enclosures away from convicted prisoners. मेरा बिल्कुल स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि जब एक व्यक्ति जो अभी अपराधी था मारा गया बागपत में, उसकी पत्नी ने 5 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि कुछ संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग और कुछ सफ़ेद पोश लोग जेल के अंदर हमारे पति की हत्या करवा देंगे। एक बात। दूसरे, वो अंडर ट्रायल था और उसको रखा गया उस अपराधी के साथ जो आजीवन कारावास की सज़ा भुगत रहा था। इस मैनुअल का विरोध था। तो जब आरोप है उसकी पत्नी का उन लोगों पे जो जांच करवा रहे हैं, तो मैं माननीय मंत्री जी से ही जानना चाहता हूं कि ये बात क्या आपको मालूम है कि प्रेस में कहा था उनकी पत्नी ने, और कहा था तो फिर क्या आप इस मामले की जो बहुत ही गंभीर मामला है कि जेल के अंदर आदमी मारा गया, वो आदमी कैसा था, डिटेल, क्या आप इसकी सीबीआई जांच करवाने की अनुमति या आदेश जारी करेंगे? मंत्री जी। सभापति जी, इसमें मैं राज्य सरकार ने जो हमें ब्यौरा भेजा है उसकी जानकारी भेजी है। उसमें दोनों भी एक बागपत की जेल में निरुद्ध बंदी के रूप में ही थे। दोनों समान कैदी माने बताए गए यहाँ पर, और ये दोनों ने वहाँ आपस में जो कुछ उनका घटना हुई है उसके बाद सामने आई है कि उसकी हत्या हुई है। लेकिन इसमें जो भी अपराध हुआ है इसमें राज्य सरकार कार्रवाई करने जा रही है। उन्होंने लिखा भी है, जांच भी की जा रही है। अगर राज्य सरकार अगर चाहे तो सीबीआई की जांच करने की राज्य सरकार हमें सूचना भेजती है गृह मंत्रालय को, तो सीबीआई जांच होगी। ये सीबीआई जब तक स्टेट गवर्नमेंट रिकमेंड नहीं करेंगे सेंटर सीधा नहीं कर पाएंगे ना। किसी बंदूक में 11 गोली नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 80 संभाजी छत्रपति रामगोपाल जी प्लीज। 11 गोलियां मारी गई, 11 गोलियां और बंदूक, ये तो पूरा सरकार की मिलीभगत से हुआ। छत्रपति सरकार उत्तर प्रदेश संभाजी छत्रपति जी। थैंक यू ऑनरेबल सर। प्लीज नीरज, ऐसा बोलना उचित नहीं है। थैंक यू ऑनरेबल सर। दिस इज नॉट गोइंग ऑन रिकॉर्ड। व्हाई यू आर वेस्टिंग योर एनर्जी? आप मांग कर सकते हैं मगर जवाब देना उनका है ना। मैं कैसा फोर्स कर सकता हूं? थैंक यू सर। Unorganized sector is a matter of deep concern. Please, no commentary, please. Unorganized sector. I got the other question, please. Unorganized sector is a matter of deep concern. In unorganized sector, especially when the work is awarded on contract, the situation is still worse, sir. I would like to ask the Honorable Minister to spell out the plans of the government has either to create a separate mechanism or to strengthen the role of existing employment exchange for keeping data on employment for organized and unorganized sectors. मंत्री जी, जैसा माननीय सदस्य बता रहे हैं, अभी तक
हमारा मंत्रालय लेबर ब्यूरो के द्वारा पूर्व में सर्वे करता था, उसमें कुछ कमी नज़र आई, सही आंकड़े इकट्ठे नहीं हो पाते थे, इसलिए अब हमने इसमें परिवर्तन किया और पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS द्वारा जो सांख्यिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है उसके द्वारा आंकड़े एकत्र करने की बात तय की है और उसके हिसाब से काम शुरू हो गया है। ये सर्वे लगता है कि काफ़ी हद तक अच्छी रिपोर्ट देगा और सही जानकारी देगा और रियल टाइम बेसिस पर हम इसको प्रकाशित करेंगे। 1 वर्ष के अंदर इसकी रिपोर्ट आएगी, इस महीने के अक्टूबर-नवंबर में इसकी रिपोर्ट आने की संभावना है। Second supplementary, Chhatrapati ji. The workers of the unorganized sectors remain out of the EFPO and ESI, which is a matter of serious concern. I would like to know from the Honourable Minister what action the government is initiating to bring the workers of the unorganized sector under EFPO and ESI. Good. नहीं, हमारी सरकार इसमें सही ढंग से कदम उठा रही है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की काफ़ी चिंता है और पिछले 2 वर्षों में 1 करोड़ से अधिक मजदूरों को ESI से जोड़ा गया और 1 करोड़ से अधिक मजदूरों को EPFO में जोड़ा गया है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत एम्प्लॉयर द्वारा दिए जाने वाले प्रोविडेंट फंड के 12% का अंश भारत सरकार स्वयं वहन कर रही है और ये अब तक करीब 60 लाख नए कर्मचारी इसमें जुड़ चुके हैं और हमें लग ये रहा है कि 31 मार्च 2019 तक ये संख्या नई और 1 करोड़ हो जाएगी। थैंक यू। श्री मनीष गुप्ता। Given an elaborate reply, would you have observed that there is no mention of what kind of social security network is being provided for unorganized sector? Right. Social security, whether they are thinking of any social security network or any other welfare scheme for unorganized sector. Right. Minister, unorganized के लिए। माननीय सदस्य काफ़ी सही बात कर रहे हैं कि हमारे देश के अंदर ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स की संख्या कम है और अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स की ज़्यादा है। हमारी सरकार इस मामले में सतत प्रयास कर रही है और हम कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इसमें अधिक से अधिक उनको सुविधा दी जाए और इसके बारे में हम लगातार मीटिंगें कर रहे हैं। अभी अनऑर्गेनाइज्ड क्षेत्र में जो भवन निर्माण के क्षेत्र में काम करने वाले थे उनकी हम लोगों ने पिछली 18 तारीख को मीटिंग बुलाई थी और इस संबंध में सारे संगठनों की सलाह और राय मांग रहे हैं। मैं माननीय सदस्य से भी आग्रह करना चाहूँगा यदि उनके पास कोई ऐसा सुझाव वो हमें देंगे तो हम उसको जल्दी अमल करने का काम करेंगे। श्री अनिल देसाई। Sir, the situation in our country regarding unorganized sector employment or the labor, that is 90% compared to 10% in organized sector. And the Honorable Minister in his reply he has said that the survey which was done or the maintenance of employment for unorganized sector that was last made by NSSO in 2011-12 and Labour Bureau that is up to 15-16. Sir, 2 major upheavals have taken place, one by demonetization and another one is through GST. So that has made a big shift as far as employment in the country has taken. Demonetization has really impacted the labor scenario. People have lost the jobs and GST has made informal sector to come to the formal sector. So this is a major shift. Through you, sir, I would like to know from the Honorable Minister what steps have been evolved by the Labour Ministry to bring this major shift and to address it, analyze it, and to address the unemployment situation in India. Reply, मंत्री जी। बताना चाहेंगे डिमोनेटाइजेशन का कोई रोजगार पर कमी आई हो ऐसी कोई जानकारी हमारे पास नहीं है। हम इतना कह सकते हैं कि आर्थिक विकास दर में वृद्धि Right, please. No comments when sitting. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया योजना, स्टार्टअप योजना, ये कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो और अच्छे व्यापक पैमाने पर आगे जा रही हैं और सरकार जो भी अनाउंसमेंट कर रही है, वायदे कर रही है, हम उस पर मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं और रोजगार के मामले में जो भी कदम होगा वो हम एक सही ढंग से उठाने का काम करेंगे। जयराम रमेश। Mention has been made in the question and in the answer on the EPFO, the Employment Provident Funds Organization, and my question relates to the EPFO. Over the last few months, a number of claims have been made on behalf of the government that India has solved the unemployment problem because the EPFO data shows that every month
about 8 lakh jobs are being created. So what is your question? So my question is this. When will this data be made available in public to independent people to analyze, to understand, and to ultimately arrive at the truth? Right, because right now, only 2 people have access to this data. Minister. सर ये तो आंकड़े बता रहे हैं ईपीएफओ में संख्या लगातार बढ़ रही है। जहां पर 20 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं वो संख्या सबके, और ये बिल्कुल ओपन है सर। इसके बारे में अगर माननीय सदस्य जी की कोई जानकारी चाहते हैं तो हम उनको देने का भी काम करेंगे। पर ये बात सही है कि पिछले 2 वर्ष में जिस ढंग से काम कर रहे हैं और अब 1 करोड़ से अधिक ईपीएफओ में कर्मचारी नए जुड़े हैं, ये वास्तव में सरकार की सक्रियता है कि हम इसमें पूरी सक्रियता के साथ काम कर रहे हैं और एक अच्छा परिणाम सामने। राइट। क्वेश्चन नंबर 81 अनुभव मोहती, नीरज शेखर, प्लीज sit down. Suddenly you get up and you start speaking. ये गलत तरीका है, अब बैठ जाइए। ये गलत तरीका है, जो गलत है ये रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। कौन झूठ बोलेगा तो जनता देख रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 81 I don't allow this and I advise you all, please don't make such comments, loose comments. Please, Anubhav Mohanty. I have not given you permission. Please. Question number 81, sir. Question has been... No, over. No, the supplementary, please. Supplementary. Sir, my first supplementary, sir. The House has to run as per some procedure. Sir, I may be a sitting MP now at present, but I belong to a middle-class family from Odisha. And sir, I understand very well how difficult it is for a middle-class family person when he or she flies from one place to another with high rates of tickets. Sir, but my question is very straight and specific. At one side, the government is saying to multiply the services provided to the passengers who are flying, to improve the quality of services, to multiply the number of passengers to fly also. Yes, sir. So what? My question here is, sir, please tell me the relevance of restricting the number of pieces of check-in baggages without reducing the weight. क्योंकि सर अगर मुझे 2 चीजें लेनी है और दोनों को मुझे अलग-अलग baggages पे पैक करके लेना है, मैं उसको एक बैगेज में ले ही नहीं सकता. Right. So how can a private airline force me and put a rule in front of me that I am allowed only to carry 1 piece and I am not allowed to take another luggage with me? Of course, Minister. Sir, there is only one airline, Jet Airways, which has put the restriction. Just for information of the House, there was a circular issued way back in 2013, rightly so, unbundling the services the airlines could offer so that the fare, basic fare that the airline charged to the passenger could be lowered over a period of time because all value-added services, other services would be charged separately, including the baggage. Subsequently, the matter was challenged in the court, High Court, Honorable High Court, and which are directed that the Director General of Civil Aviation has a very limited power to get into this. But because you have pointed out to us these 15 kg issues, which is absolutely right, that 15 kg is understandable, but why not 2 bags? So we'll definitely look into this. I assure the House this is a very important. Right. Second supplementary. Thank you so much, sir. So my second supplementary is, so whenever I fly from Odisha to whichever place in India, I get to see the air hostesses or the stewards in the flight speaking that flight mein jo bhi abhi air hostess hai, they are comfortable speaking English, Hindi, Assamese or Bengali. Right. So my question, sir. My question here is, sir, ये provision इसलिए आपने रखा है. More people get chance. Otherwise, I have no problem. ये provision आपने इसलिए रखा है ताकि passengers को वो सुविधाएं मिले जो English और हिंदी ना जानते हैं वो अपनी regional भाषा में बात कर पाए. Right. But till today, I have never heard any air hostess speaking or any announcement being made that we know Odia also. Any passenger speaking in Odia can communicate with us. Right. So, will the government take a drive? Will the government take a drive to appoint, to
get air hostesses speaking Odia, or those air hostesses who are appointed there in the flights also. Right. They learn Odia, and stewards Minister, also, flight stewards. Minister, there is a question. So this is a question, and this is also a suggestion from my side as an Odia to the government, sir. Right, right. For the information of Honorable Minister, government does not appoint any air hostesses. Yet to become a minister. We'll make sure that this is a very important issue, that sensitivity of people, the passengers, has to be always been taken into account by the airlines. We'll definitely advise the airlines to make sure that the regional languages also will be used by the staff when they make an announcement, and particularly Odia. I am also fond of Odia. Thank you. The Vijay Sai Reddy. Sir. Sir, my question is relating to the services that are being provided to the elderly passengers who have less energy to run from one counter to another counter in an airport. Sir, I request the Honorable Minister to address whether do the airports have the adequate and efficient arrangements to provide services to these elderly passengers, right, whose bags are missing and misplaced. Right. Minister. Thank you, sir. There are a lot of challenges passengers have to face because of the exponential increase in the overall airline traffic, which is growing at 20%. And India is the market which is growing at the highest in the world in terms of more and more passengers joining the air travel experience. So it's always possible. In view of this, we have come out with a Charter of Passengers' Rights on 22nd of May, which is a draft charter, which is already offered for people to offer their comments. We'll be very happy to include this, but the point is well taken that we elderly people like me must not be subjected to any challenges. I agree. Sri Abir Ranjan. Appreciate the fact that the Honourable Minister has taken note of the fact of adding more number of pieces of luggages. We appreciate this. But sir, I would like to know the total number of complaints received from by the airlines from the passengers in relation to the baggages, and also, sir, the compensation given to them, and sir, the details of it. Right, Minister. As a ministry, we are coming out with a very forward-looking idea, which is called Digi Yatra, which will ensure that entire life cycle of air travel will be used through a very different technology, so that entire issues related to including the baggage handling and everything will be properly addressed. This is under trial and we'll be launching it soon. I will take the House into confidence at a time when we are appropriately ready to launch it. And I'm sure this will give us a different kind of experience and will be one of the top leaders in this in terms of offering this service to the people. Sri Bhuvanesh Karita. Thank you, sir. The question here is of carrying baggage by the air passengers. And I may mention here that a lot of air passengers travel from northeastern region to Delhi and other places. And I'm happy that Honorable Minister has increased flights. Now there is no dart of flight to travel. So most of the travelers from that region is either students coming for the studies or patients who comes for the treatment. So the baggage that is allowed is not sufficient to carry, and they cannot pay more. Right. So will the minister review it and make the baggage little larger as suggested by the member, right, 20 kg or 25 kg, so that the students and patients get the benefit. Thank you very much, sir. We'll just look into this. Right. Next question is Sri Ripun Bora, question number 82. No, flight has already taken off, ma. You can't put your luggage now in the flight. Sir, my first supplementary to the Honorable Minister, that in the reply Honorable Minister has said that there are 52 number of Bangladeshi nationals are still in the detention camp in Assam, and recently the Bangladesh government have verified the nationality and issued travel documents. Now, my question is
here minister has shifted the burden to the state government and said that they will be deported as soon as possible. Why it is as soon as possible, sir? If these are foreigners, it should be deported instantly. So what is the problem for the state government of Assam, that why they are not deporting these Bangladeshis? Minister, you have to ask the question pointedly. Honorable member, he comes from Assam, so he has put a correct question. Let me inform the August House through you, sir, that Bangladesh government has agreed, identified, and accepted the identity of these people as Bangladeshi nationals. So now they have agreed. So these 52 people, including one minority, will be deported on 30th July at 11 a.m. from Mankachar ICP in Assam. Sri Swapan Das Gupta. Oh, sorry. Supplementary. Sorry. After. Whether the Honorable Minister is aware that now this is a very burning issue in Assam, that thousands and thousands genuine Indian citizens are kept in detention camp by motivated of the tribunals and the border police by in a particular motive, taking particular motive. Right. No motive which can be attached to anybody who has been kept in detention. The detention camp is only after the tribunal declares that they are foreigners. So government cannot on its own declare anybody as a foreigner and then put in the detention camp. Good. So the statement is not correct. Sri Swapan Das Gupta. Swapan Das Gupta. Please, Mr. Ripan Bora, please. Swapan Das Gupta. Everything is important. That's why you are here. Sri Swapan Das Gupta. Thank you, Mr. Chairman. I'm very reassured that at least the minister has admitted that the Bangladesh government, for a change, has admitted that there are illegal Bangladeshis residing in India and have admitted to taking it back. Earlier, they had not even admitted that. I think just as we are approaching this problem, a new problem is coming up, sir, and I would like to ask a question on that. This is the systematic trickle of Rohingya refugees which are coming in using Bangladesh as a staging post to come into various parts of India, but notably using the seaborne route to come into Sundarbans area of West Bengal. And there are reports which have been documented in the local media which have said that 40 organizations are working in close coordination to facilitate them. My question is, what steps is the government taking to actually detect, identify and remove them, and are there simultaneous attempts being made to take action against those organizations within the country which are facilitating the illegal arrival of these Rohingyas? Right. Minister. Under the Foreigners Act 1946, central government has the power to identify, detect and to push back or deport any person who is illegally staying in India. With regards to the issue of Rohingyas, we have stated earlier also, there are Rohingyas who have entered India illegally. They are staying in various states as per the security agency report. Right now they are in the state of Jammu Kashmir, Andhra Pradesh, Telangana, Haryana, Western UP, Delhi, Jaipur, and in Jammu city. Now these people, central government has already clearly stated, Honorable Home Minister has made it very clear and given direction to the state to identify, detect and start the process of deportation to all the Rohingyas who have entered illegally. Sri Anand Sharma. Rohingya refugee crisis is regional as well as global issue. And we have seen reports that the Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, in his talks with the Bangladesh Prime Minister and the Foreign Minister of India, Srimati Sushma Swaraj, who especially went to Dhaka, has discussed this matter. I would like to know, through you, sir, from the government, whether it is true that the government of India
at various levels is engaged in resolving the Rohingya refugee crisis along with the government of Bangladesh, the United Nations and the government of Myanmar. Right, thank you. Minister. Rohingya issue, the background, everybody knows it. Kiran, and we have already approached the government of Myanmar also and Bangladesh also. And we all know that they have come from the state of Rakhine in Myanmar. So the government of India is impressing upon the government of Myanmar to take back these people, and the process will be as per the discussion we have with the sovereign country. I cannot give assurance here, sir. Srimati Rupa Ganguri, Mantri, Griha Mantri, Home Minister. माननीय सदस्य अनंत शर्मा जी ने जिस प्रश्न का उत्तर चाहा है उस संबंध में सभापति महोदय मुझे ये कहना है कि जहाँ तक एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर की बांग्लादेश के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर से बातचीत का प्रश्न है, एक चर्चा हुई है उनके साथ, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन हमारे देश में जो रोहिंग्याज जो कई स्टेट्स में इस समय रह रहे हैं उस संबंध में जैसा हमारे सहयोगी मित्र किरण जी ने बतलाया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एडवाइजरी यह जारी की गई है कि आपकी स्टेट में जो भी रोहिंग्या रहते हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए, उनकी नंबरिंग की जानी चाहिए, उनके बायोमेट्रिक्स लिए जाने चाहिए और साथ ही साथ यह भी इंश्योर किया जाना चाहिए कि उनके पास ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट ना हो ताकि फ्यूचर में कभी वह सिटीजनशिप के लिए क्लेम कर सकें। यह भी एडवाइजरी उनको जारी की गई है। यह सब सारी रिपोर्ट राज्य सरकारों के द्वारा प्राप्त हो जाने के बाद हम इसको एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को भेजेंगे। उसके बाद हमारी विदेश मंत्री वहाँ के बर्मा के भी विदेश मंत्री के साथ, आवश्यक हुआ तो बांग्लादेश के विदेश मंत्री के साथ बात करेंगी ताकि हमारे देश में रहने वाले रोहिंग्यास को बर्मा में डिपोर्ट किया जा सके। ठीक है, श्रीमती रूपा गंगूली। नमस्कार, मैं आपके द्वारा दोनों मंत्री जी से ये बात पूछना भी चाहूँगी और सलाह भी मांगूंगी। इलीगल माइग्रेंट एक थोड़ा सा झंझट वाला चीज़ हो गया है क्योंकि पश्चिम बंगाल में अलग अलग आइडेंटिटी कार्ड बनाए जा रहे हैं। अब साधारण लोग जो है वो कार्ड इतना अच्छा समझते नहीं हैं, तो अलग किस्म के आइडेंटिटी कार्ड जो हमारे पश्चिम बंगाल में बहुत सारे बन रहे हैं उसको ना वो कोई समझता नहीं है। हम खुद देखे हैं, आइडेंटिफाई करना मुश्किल है कॉमन लोगों के लिए कि वो क्या है। वो राशन कार्ड जो इतने सालों से गलत तरीके से बन रहे थे और फेक भी बन रहे थे, जो आज मैं सवाल बोल रही हूँ वही दोनों स्टेट में ना इश्यूज अलग हो गया। असम में जो आज घटना घट रहे वहाँ पे बहुत सारे सही हिंदू बहुत सालों से आने के बाद भी रहने के बाद भी वो आज के तारीख में हिसाब के अनुसार वो इल्लीगल दिख रहे हैं और पश्चिम बंगाल में बहुत सारे लोग आ रहे हैं वो इल्लीगल है। सो जो विषय हम लोग बोले जाते हैं हमेशा कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म तो सब स्टेट देखेंगे, तो जहाँ पे आप कह रहे हैं कि मंत्री जी स्टेट पर आपने निर्देश दिए हैं तो स्टेट काम नहीं करे तो वहाँ का इंसान क्या करे? मिनिस्टर कर रहे हैं सर, जो नेसेसरी कदम भारत सरकार की ओर से उठाना चाहिए वो उठा रहे हैं, लेकिन जैसे इलीगल बारे में जो माननीय सदस्य ने कही है 2014 31 दिसंबर तक कोई रिलीजियस परसिक्यूशन से 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आया है उनका स्टे को रेगुलर किया है, उनका स्टे इलीगल नहीं है। और जो रिलीजियस परसिक्यूशन से नहीं आया है और जिसका पास वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है उसको हर राज्य सरकार कदम उठाने के लिए समय समय पर यहाँ गृह मंत्रालय से एडवाइजरी जारी किया गया है। थैंक यू। ऑनरेबल मेंबर्स, I have to inform members that the Business Advisory Committee, please, in its meeting held on 25th July, has allotted time for government legislative business as follows. Business: consideration passing of the following bills after they are passed by Lok Sabha: Public Premises Eviction and Unauthorized Occupants Amendment Bill 2017, 2 hours; National Medical Commission Bill, 3 hours; Major Port Authorities Bill, 3 hours; Trafficking of Persons Prevention, Protection and Rehabilitation Bill, 2 hours; the Banning of Unregulated Deposit Scheme, 2 hours; the Micro, Small, Medium Enterprise Development Bill 2018, 1 hour; the Airports Economic Regulatory Authority Amendment
Bill, 2 hours. The Arbitration and Conciliation Amendment Bill, 2 hours. Consideration and passing of the Right of Children for Free and Compulsory Education Amendment Bill as passed by Lok Sabha, 3 hours. Consideration and passing of National Trust for Welfare of Persons with autism, cerebral palsy, mental retardation and multiple disabilities Amendment Bill 2018. The House is adjourned to meet again at 2 p.m. I have a suggestion and appeal to members at 2 p.m. sometimes we have to press quorum bill. Please keep that in mind. Be there in House in time. Thank you.